So, hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. And once again, we are diving in a session over revision. We are revising the stuff what we covered in previous classes, and this is the fourth day of our revision. We have already covered what is tense, what are their categories, what are persons, what are their categories, and what is simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. So once we review all this, we'll move further. So let me start it with warm up exercise. I'll be asking you a few questions or translations and you will be letting me know. And then we'll move to the next topic, right? So let us begin with few translations. So firstly, I'd like to ask to Pallavi ji. Pallavi ji, let me know वह खाना पकाता रहा है. What will be the translation for this? वह खाना पकाता रहा है. He um, वह he is he is he is cooking food. He is cooking food. Okay. And वह खाना पका रहा है. What will be the English of it? वह खाना पका रहा है. वह खाना पका रहा है. Yes. He is he is cooking food. Both will have the same English. वह खाना पकाता रहा है. He is cooking food Yes, and वह खाना पकाता रहा है. He is cooking food. Both would be same. yes sir. Okay. All right. Let me see that others agree or not. So let me ask to Divya ji. Do you agree with Pallavi ji's answer? No, sir. So what is the difference? So the first sentence, Yeah. Go sorry, on. Yeah. the first sentence is incorrect. It is he has been cooking food, Yes. He has been cooking food. Okay. and the second one is correct. He is cooking food. So how do you differentiate both of them? In the first sentence, in the Hindi sentence, at the ending, there are the words वह खाना पकाता रहा है, ता है, रहा है और है. यानी कि ये continuous भी है और perfect भी है. So we will include this example as a perfect continuous tense. Okay, so it you mean like when the sentence ends in Hindi like ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, so that is present perfect tense, right? Sorry, present perfect continuous. Present perfect continuous tense. Okay. Continuous. ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं. Okay. All right. And when there is रहा है, रही है, रहे हैं, that is present Right. continuous tense. Okay. Yes. Good. All right. Savanji, do you say the same or you have different perspective over it? No, sir, same. Okay. All right. Abhishek ji, are you there? Abhishek ji, are you there? Um, you may go. Abhishek ji, you may go in reading club. People are joining. Okay, all right. So you told correctly like जब हम बात करते हैं रहा है रही है रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है और जब हम बात करते हैं ता रहा है ती रही है ते रहे हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ले लेते हैं, राइट? तो इस तरह से हम इसमें समझ लिए थे. तो पल्लवी जी, अभी आपको समझ में आया या फिर अभी भी डाउट है कुछ? आया सर समझ में. ओके. ऑल राइट. तो आप बताइएगा दूसरा. तुम चोरी कर रहे हो. You are चोरी का इंग्लिश. सब चोरी का इंग्लिश में क्या होता स्टील. स्टील आईएनजी लगाएंगे तो स्टीलिंग हो जाएगा. है? You are stealing. स्टीलिंग. तुम चोरी करते रहे हो. दे रही हूँ. तुम चोरी करते रहे You हो. you have been telling. यू हैव बीन स्टीलिंग. करेक्ट. नाइस. Stealing. ओके.
वह जाता रहा है। जाता रहा है। यस। ही इज sorry जा रहा है। he has he has been going sir and he has been going ओके। अगर मैं आपसे पूछूं, तुम खाना क्यों पकाते हो, हाउ वुड यू ट्रांसलेट? why you are cooking why you are cooking food वाई यू आर कुकिंग। सावन जी sir आप sir बताइएगा, तुम खाना are क्यों you पक why are you Why, cooking food हम्म, आप बताइए सावन जी, तुम खाना क्यों why पकाते हो? why do you cook food? इन्होंने वाई आर यू कुकिंग फूड बताया है, क्या गलती की है इन्होंने? चलो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चले गए। यस, प्रेजेंट तुम कंटिन्यूस खाना चला क्यों गया। पका रहे हो उसका ऐसे राइट। बोल सकते। खा रहे हैं। समझ पा रहे हैं पल्लवी जी आप? सर ये वाला नहीं समझा सर एक बार तुम खाना क्यों पकाते हो, ता है, ती है, ते है, जब ये आता है तब। ता है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ से हो गया? ता है हाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज डू और डज, करेक्ट। ओके। डू डज सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। बहुत बढ़िया। तो वाई डू यू कुक फूड हो जाएगा। अब मैं बोलूं तुम खाना क्यों पका रहे हो, आप बताइए पल्लवी जी, क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? पका रहे हैं यस। why why you are cooking food वाई यू आर। आप इंट्रो इंट्रो पका रहे हैं हाँ, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आता है, ये बात आप भूल गए हैं। why are you cooking food वाई आर यू कुकिंग फूड। अब बताइए तुमने खाना क्यों पकाया है। तुमने खाना तुमने खाना क्यों पकाया है। why you are cooking food तुमने खाना क्यों पकाया है। आपने बोला था कि तुम खाना क्यों पका रहे हो, वाई आर यू कुकिंग फूड, ठीक है। वो ठीक है, कुकिंग वाला आईएनजी और इज एम आर उसमें लगता है ना, कंटिन्यूअस में। तुमने खाना क्यों पकाया है, खाना पकाया जा चुका है या नहीं, पहले बताइए, काम पूरा हो गया या नहीं, ये बताइए। काम हो पूरा हो गया गया है ना। हाँ, तो ये कौन सा टेंस परफेक्ट है? प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? you have you have cooked food तुमने खाना क्यों पकाया है। why have you cooked food वाई हैव यू कुकड, है ना, थर्ड फॉर्म लगेगा। cooked food वाई हैव यू कुकड फूड। ऐसे गलतियां करेंगे कैसे काम चलेगा। और बताइए, तुम सुबह से खाना क्यों पका रहे हो। तुम सुबह से खाना हम्म, why have you been cooking food since morning वाई हैव यू बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, करेक्ट। तुम सुबह से खाना क्यों पका रहे हो, वाई हैव यू बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, राइट। और बताइए आप बहुत गलती भी की आपने, तो थोड़ा बताएंगे। अम, वह कैसे जाता है, कैसे की इंग्लिश हाउ होती है, वह कैसे जाता है। how is sorry how वह कैसे जाता है वह he he does go ही डज गो, वह कैसे जाता है, ही डज क्यों कैसे हो गया? पहले कैसे क्वेश्चन वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। हाउ, HOW। how he does go sorry हेल्पिंग वर्ब आगे आना चाहिए। how he does sorry
हाउ डज ही गो? हाउ डज ही गो। यस, हाउ डज ही गो। अब दूसरा बताइए, वह कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? वह कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो? वेयर डज ही गो, राइट। आ, तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? क्या की इंग्लिश क्या होती है? वॉट। बीच में आया ना, क्या ये ओपन एंडेड है? क्या तुम करते हो, ये तो बोला नहीं। तुम क्या करते हो? वॉट। आगे। व्हाट व्हाट यू डू? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया आपने स्टार्टिंग में? वॉट डू यू व्हाट डू डू। व्हाट डू यू डू एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब के रूप में। व्हाट डू यू डू। और व्हाट डू बताइए, यू? तुम क्या पकाते हो? तुम क्या पकाते हो? व्हाट डू यू कुक? व्हाट डू यू कुक। वह कहाँ जा रहा है? वह कहाँ जा रहा है? वेयर इज नहीं सॉरी वेयर शी सॉरी वेयर इज शी जा रहा है? वेयर इज वेयर आर यू? वह कहाँ जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग? पहले ही सही कर रहे थे, पहले ही बता देते। वेयर इज ही, वेयर इज सी, वेयर आर यू, सब शामिल कर दिया इसमें। बताइए, वह कहाँ जा चुका है? वह कहाँ जा वह चुका है? वह कहाँ जा चुका है? वेयर वेयर हैव यू गॉन? वेयर हैव यू कहाँ से आ गया? वह बोल रहा हूँ, वह की इंग्लिश यू कैसे हो गई? वेयर वेयर हैज ही गॉन? हम्म, स्ट्रक्चर करना वेयर सीखिए। वह 2 घंटे से कहाँ जा रहा है? वेयर हैज बीन वेयर हैज बीन गोइंग फॉर 2 hours? और ही कहाँ लगाया आपने? वेयर हैज ही बीन गोइंग फॉर 2 hours? करेक्ट है। बहुत लंबा समय लिया आपने अभी, और अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है बहुत ज्यादा। ठीक है। सावन जी और दिव्या जी की शक्ल देखिए, बोले इसमें इनमें ही लग गई है तो हो गया हमारा उद्धार। चलिए, सावन जी आप बताइए, तुम तुम उसे क्यों नहीं जाने देते हो? तुम उसे क्यों नहीं जाने देते हो? तुम मुझसे क्यों नहीं जाने देते हो? Why don't you let him go? यस, तुम उसे क्यों नहीं जाने देते, एक बार और बताइएगा। Why don't you let him go? Why दिव्या don't जी, you let him go? आप बताइए दिव्या जी, इज दिस करेक्ट? Actually, I'm translating. Give me some time. बताओ। Yes, it is correct. Why doesn't you let him or her go? पर उन्होंने डजन तो बोला ही नहीं है। सर उनका गलत है। मतलब यू के साथ डजंट लगेगा ना, है ना? Sorry, why don't you let him go? अभी तो आपने नहीं। सर वाई डू मैंने यू वाई डू यू नॉट लेट हिम गो। वाई वाई हाँ, डोंट यू, वाई डोंट यू लेट हिम गो या वाई डू यू नॉट लेट हिम गो, ये हो जाएगा ना, सही है।
वाई डू यू नॉट लेट हिम गो। ठीक है, जब भी हम कोई काम करने देते हैं किसी से तो लेट का यूज करते हैं। राइट। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस बताएंगी पल्लवी जी। तुम उसे क्यों पढ़ने नहीं देते हो। आई होप आप बता पाए पल्लवी जी। तुम उसे तुम उसे क्यों पढ़ने नहीं देते हो। उसे why do you mm, start letting why sorry can't वाई, चलिए आप बताइए दिव्या जी अभी। तुम उसे क्यों Why नहीं, don't why don't you let him study? तुम उसे क्यों नहीं पढ़ने देते हो। वाई डोंट यू लेट हिम स्टडी, या वाई डू यू नॉट लेट हिम स्टडी। लेट हिम स्टडी, पढ़ने देना, उसे पढ़ने देना। लेट हिम स्टडी, उसे जाने देना। लेट हिम गो, मुझे पढ़ने देना। लेट हिम रीड, लेट मी रीड, लेट मी स्टडी, बात एक ही है। एक तरह से मतलब कॉन्टेक्स्ट की बात। और मुझे खाने दो, लेट मी ईट। इस तरह से लेट का यूज कोई चीज करने देना के संदर्भ में होता है। ठीक है। नहीं, इम्परेटिव नहीं है। अगर आप इसमें बात करेंगे, तुम मुझे जाने देते हो, वह मुझे पढ़ने देता है। ठीक है। तो ये आप इस तरह से जब बोल रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। अगर आप डायरेक्टली बोलते हैं लेट हिम गो तो ये इम्परेटिव हो जाएगा। उसे जाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, ये इम्परेटिव है। जैसे बोलते हैं ना, गो देयर, सिट डाउन, ये इम्परेटिव होता है उसी तरह से। पर लेट का यूज हम कोई काम करने देने के लिए करते हैं। चलिए एक सेंटेंस और बताइए, सावन जी आप बताइए। वह तुम्हें कहाँ जाने दे रहा है। सोच समझ के बताइएगा। वह तुम्हें कहाँ जाने दे रहा है। वह तुम्हें कहाँ जाने दिया। वह तुम्हें कहाँ जाने दे रहा है। वह तुम्हें कहाँ जाने दे रहा है। आप वह लोग कमेंट तुम्हें सेक्शन में लिख सकते हैं, बाकी लोग। वह तुम्हें कहाँ जाने दे रहा है। अ, हाँ, सोच में पड़ गए। एक बार आपने क्वेश्चन किया था इसी तरह का मुझसे। कहाँ जाने दे रहा है बोले सर आप। हाँ, वह तुम्हें कहाँ जाने दे रहा है। अच्छा, वेर इज ही गोइंग गोइंग टू लेट हिम। दिव्या जी ने क्या किया ये, लिख कर मिटा दिया। वह तुम्हें कहाँ जाने दे रहा है। वह तुम्हें कहाँ जाने दे रहा है। नहीं, आई डिडंट कैच इट सर। इट डिडंट कैच इट। चलिए इजी बनाते हैं सेंटेंस को पहले। वह तुम्हें जाने दे रहा है कि इंग्लिश बताइए। वह He is तुम्हें letting जाने you. बताइए। वह तुम्हें जाने दे रहा है। हम्म। ही इज लेटिंग हिम गो। थोड़ा सा गलत क्यों कर रहे हैं। वह तुम्हें जाने दे रहा है ना, इजी है ना। तुम्हें, हिम कहाँ से आ जाएगा। वह तुम्हें जाने दे रहा है। लेटिंग यू टू गो सर। हम्म। अब बताइए, वह तुम्हें नहीं जाने दे रहा है। वह तुम्हें ही इज नॉट गोइंग टू लेट यू टू गो। ही इज नॉट लेटिंग यू टू गो। ही इज नॉट लेटिंग यू गो। टू नहीं आएगा ना इसमें। और बताइए, क्या वह तुम्हें जाने दे रहा है। वाई इज ही नहीं नहीं नहीं,
क्या वह तुम्हें जाने दे रहा है? क्या वह? Is he हम्म। is he is he letting you to go? Is he letting you to? Is he letting you go? इज ही लेटिंग यू गो? बहुत बढ़िया। ओके, अब आ जाइए इस पे। वह तुम्हें कहाँ जाने दे रहा है? Where is he letting you go? वेयर इज ही लेटिंग यू गो? आपने डज कैसे लगाया था दिव्या जी उस समय? सर पहले मैंने स्टार्टिंग में वो एग्जैक्ट गौर नहीं किया, आपने रहा है बोला है। अच्छा, ठीक है। वेयर इज ही लेटिंग यू गो? ठीक है, बढ़िया। इस सेंटेंस के भी दो सेंस हो सकते हैं। एक अगर कहने का तरीका होगा, वह तुम्हें कहाँ जाने दे रहा है, मतलब प्लेस पूछ रहे हैं। और एक ये भी तरीका हो सकता है कि मतलब तुम कह रहे हो कि जैसे मुझे भी जाना है, लेकिन तुम्हारी मम्मी कहाँ जाने दे रही है तुम्हें। मतलब मम्मी कहाँ जाने, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये कि मम्मी जाने नहीं दे रही हैं। आप भाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं बोलूँ वह तुम्हें कहाँ जाने दे रहा है, प्लेस पूछ रहा हूँ, तो वेयर इज ही लेटिंग यू गो। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे जाना है, हम भी चल रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी मम्मी कहाँ जाने दे रही है तुम्हें तो तुम जाओगे। इसका मतलब समझ रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें अलाउ नहीं कर रही है जाने के लिए। इसका सेंस ये हुआ तुम्हारी मम्मी तुम्हें जाने ही नहीं दे रही हैं, है ना। या फिर आप बोलेंगे क्या तुम्हारी मम्मी जाने दे रही है तो तुम जाओगे। इज योर मदर या इज ही या शी जो भी होगा लेटिंग यू गो। आई होप आप सेंस के हिसाब से ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि कहने को कुछ भी हो सकता है हिंदी में, और उसका अर्थ कुछ और भी निकल सकता है। तो डिपेंड करेगा। हाँ, लोकेशन वाले की बात कर रहे हैं, तो वो तुम्हें कहाँ पर जाने दे रहा है, कहाँ जाने दे रहा है, तो वेयर इज ही लेटिंग यू गो। तो उस हिसाब से वो सही हो जाएगा, ठीक है। सावन जी समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन किया था आपने एक बार। Yes, sir. तो इज ही लेटिंग यू गो भी हो सकता है, और नेगेटिव में भी बना सकते हैं कि जब लग रहा है कि अरे वो जाने ही नहीं दे रहे, सेंस ये है कि भाई चले तो जाओ, पर पापा जाने कहाँ दे रहे हैं। यू मे गो, बट फादर इज नॉट लेटिंग यू गो। या Expression पे डिपेंड करते हैं सर. हाँ, एक्सप्रेशन पे, बिल्कुल सही कहा आपने, एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। बट फादर इज नॉट लेटिंग यू गो, राइट। या इज योर फादर लेटिंग यू गो, सो यू विल गो। यू कांट गो बिकॉज योर फादर इज नॉट लेटिंग यू गो। ठीक है, इस तरह से। ओके। अम तो वह तुम्हें कहाँ जाने दे रहा है, ट्रांसलेशन के बेस पे देखेंगे तो वेयर इज ही लेटिंग यू गो। हाँ, अगर एक्सप्रेशन इस तरह का है कि सामने वाला कहना चाह रहा है कि भाई वो तुम्हें जाने ही नहीं दे रहा है, तो ही इज नॉट लेटिंग यू गो। या फिर एक तरह से वो क्या, वो तुम्हें जाने दे रहा है वो वाला सेंस, तो इज ही लेटिंग यू गो, वह तुम्हें कहाँ जाने दे रहा है भाई, इज ही लेटिंग यू गो, नो। तो इस तरह से एक्सप्रेशन पर, सेंस पर डिपेंड करेगा। ट्रांसलेशन सही है आपका, वेयर इज ही लेटिंग यू गो, क्योंकि उस हिसाब से अगर कहाँ कर लेंगे तो सही है। आगे बढ़ते हैं। बताइए आप मुझे, क्या उसने, ये दिव्या जी बताएंगे, क्या उसने तुम्हें गाना गाने दिया है? क्या उसने तुम्हें गाना गाने दिया है? हैव ही अलाउड यू टू सिंग? हैव कहाँ से आ गया? सर दिया है, लिया है, किया हैव, है। ही के साथ हैव। सॉरी सॉरी, हैज ही अलाउड यू टू सिंग? करेक्ट है। लेट के साथ बनाइए। हैज ही, sorry sir, I'm not getting your point that how can I make the आपने sentence correct? जैसे अलाउ के साथ बनाया है वैसे ही लेट के साथ भी बन सकता है। अच्छा, एक बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग, लेट का एक सिनोनिम अलाउ भी होता है। ठीक है, तो बताइए। Has he let, has sir, the third form of let be let. लेट ही रहता है। Has he let you to sing? टू नहीं लगता उस लेट में, अलाउ वाले में टू लगता है, इसमें टू नहीं लगेगा। हैज ही लेट यू सिंग। ठीक है। सर किसी भी टेंस में जैसे हम एग्जांपल्स पिछली कर रहे हैं लेटिंग यू वो, इसमें हम टू अवॉइड कर रहे हैं, मतलब अभी तक हमने, मतलब सब मैंने में कंटिन्यूस में लेट वाली एग्जांपल्स लेटिंग के आगे टू अवॉइड किया। अब सब सेंटेंसेस में लेट होगा या लेट की फर्स्ट सेकंड फॉर्म कोई भी होगी, बस खाली टू अवॉइड ही होगा हर बार लेट के साथ। राइट, राइट, गुड ऑब्जर्वेशन। तो वी डू नॉट यूज टू आफ्टर यूजिंग लेट एज अलाउंस और समथिंग, राइट। तो टू यूज नहीं करते हैं। लेट समवन डू आपका फॉर्मूला होता है कि लेट के बाद समवन मतलब कुछ भी हो सकता है, यू, ही, हिम, है ना, मी, ऑब्जेक्टिव केस आएगा।
व्हाट हैज ही लेट यू, नहीं, वह तुम्हें, क्या बोला था मैं सेंटेंस, वह क्या तुम्हें सेंटेंस क्या बोला गा- था? वह तुम्हें क्या वह तुम्हें गाना गाने दे रहा है। क्या वह तुम्हें गाना गाने दे रहा है, क्या वह, सॉरी, नॉट दे रहा है, क्या वह तुम्हें गाना। वह तुम्हें गाना क्यों गाने दे रहा है? हाँ, वह तुम्हें गाना क्यों गाने दे रहा नहीं, है। नॉट क्या सर, क्या नॉट दे क्या रहा है। क्या उसने तुम्हें गाना गाने दिया है? हैज हाँ, ही लेट यू सिंग अ सॉन्ग, सिंगर सॉन्ग। हैज ही लेट यू सिंग अ सॉन्ग, राइट। आगे बढ़ते हैं। अम हम्म, एक और बताइए, पल्लवी जी बताएंगे इसका। लेट का यूज समझ में आया पल्लवी जी? यस सर। बताइए, मैं तुम्हें हंसने देता हूँ। मैं तुम्हें हंसने देता हूँ। आई हैव देता हूँ। आई लेट आई लेट I let him you I let you ये हंसने के क्या होता है सर? हंसने देता हूँ। आई लेट यू स्टडी, मैं तुम्हें पढ़ने देता हूँ, आई लेट यू स्टडी। I let you study। मैं तुम्हें पढ़ने देता हूँ, ताहती है ना, आई लेट यू स्टडी। कोई नहीं। सर हंसने के लिए क्या बोलते अच्छा, हंसने बोला था, तो आई लेट यू हैं? लाफ, मैं तुम्हें हंसने देता हूँ, I let you laugh। आई लेट यू लाफ, करेक्ट। बढ़िया। Yes। आगे बताइए, सावन जी, क्या उसने तुम्हें जाने देने की कोशिश की है? बाकी लोग लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्या उसने तुम्हें जाने देने की कोशिश की है? ध्यान नहीं देने की। क्या उसने सर, आई डोंट अंडरस्टैंड, कुड यू रिपीट प्लीज? क्या उसने तुम्हें जाने देने की कोशिश की है? क्या उसने तुम्हें जाने देने की कोशिश की है? ये हैव कहाँ से आ जाता है ही के साथ आपका बार बार? Sir, autocorrect. By seriously, by mistake. After sending, I realized that I have written have. ओके, कहाँ फंस गए आप? क्या उसने तुम्हें जाने देने की कोशिश की है, बस एक ही वर्ड तो बढ़ाया है मैंने, कोशिश की है, बाकी तो सेम ही रहा है आगे। टू लिंकिंग वर्ड लगाइए और बाकी जोड़िए। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा सर, बट वो हाँ, की है, काम पूरा हो चुका है। सॉरी सर, सर। इसको देखा जाए तो ये दो सेंस में भी जा सकते हैं कि यानी हम एक सिंपल प्रेजेंट में हम इसको इस सेंस में पहले मैंने सोचा ले सकते हैं, क्योंकि हम किसी से पूछ भी सकते हैं क्या उसने तुम्हें जाने क्या उस सर एक सेकंड, क्या उसने तुम्हें जाने देने की कोशिश की है, यानी कि हम पूछ रहे हैं तो मतलब हम कह नहीं सकते कि ये काम हुआ है। हम कंसीडर कर सकते हैं कि हम पूछ रहे हैं कि उसने ऐसा किया तो फिर है। आप घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे हैं, सीधे सीधे पूछ लीजिए ना। क्या वह तुम्हें जाने देने की कोशिश करता है? कोशिश भी करता है तुम्हें जाने देने की, तो अलग ही चीज हो गया ना केस। कोशिश की है और करता है, इसमें थोड़ा फर्क है ना, साफ साफ दिख रहा है। ओके ओके सर। यस। हैज ही लेट टू ट्राई यू टू गो, यू गो। पहले कौन सा एक्शन आना चाहिए, सोचिए समझिए और देखिए। क्या उसने तुम्हें
जाने देने की कोशिश की है। क्या उसने कोशिश की है तुम्हें जाने देने की? ऐसे तोड़ के कीजिए तब समझ में आ जाएगा। क्या उसने कोशिश की है तुम्हें? हैज इट हाँ। हैज इट ट्राइड हैज ही ट्राइड? हैज इट ट्राइड लेट यू गो हैज ही हैज इट ट्राइड ट्राइड टू? टू लेट यू गो टू लेट यू गो हैज ही ट्राइड टू लेट यू गो? बढ़िया। चलिए, और बताइए। अम क्या वह मेरे पास अ, आने की कोशिश करता है? क्या क्या वह हुआ मिस मेरे पास आने की कोशिश करता है? हैज इट ट्राइड टू लेट हैज इट ट्राइड हैज इट ट्राइड हैज इट ट्राइड हैज इट ट्राइड टू कम हैज इट ट्राइड टू लेट आप मुझे टू सेंटेंस बताइए, सेंटेंस क्या था? क्या वो मेरे पास आने की कोशिश करता है आप देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा करता है सर 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 डज इट ये सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा सर मुझे क्या पता। सर कुड यू रिपीट प्लीज वन सेकंड क्या वह मेरे पास आने की कोशिश करता है? डज इट ट्राई टू डज ही ट्राई टू कम? कम टू मी बोल सकते कम सर टू मी, करेक्ट। डज ही ट्राई टू कम टू मी? डज ही ट्राई टू कम टू मी? पल्लवी जी, दिमाग का तो दही हो गया होगा अभी। नियर मी, डायरेक्ट टू मी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हम आप किसी के पास जा रहे हो ना, तो यहाँ पे एक डायरेक्शनल वे में बात होती है तो टू लगा देते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, गो टू मार्केट, तो यहाँ डायरेक्शनल वे में बात हो रही है। नहीं। डज ही ट्राई टू कम टू मी, है ना? आगे। अच्छा, एक सेंस और होता है। अगर आप विजिट का यूज करेंगे तो वहाँ टू नहीं लगाते हैं जनरली, इस वाले ये होता। क्या उसने मेरे पास आने की कोशिश की है? अगर मतलब आने का आ गया इसमें, मुझे देखने की कोशिश की, कुछ ऐसा समझो, विजिट का भी यूज कर सकते हैं। तो डज ही ट्राई टू विजिट मी, ऐसा है ना, विजिट, किसी को देखने जाना, है ना? तो वो भी करेक्ट हो सकता है। ओके, एक मिनट। यस। आगे बताइएगा, सभी लोग बताइए। क्या तुमने उसे अ, कभी भी जाने दिया है? कभी भी के लिए आप एवर लगा सकते हैं। Have you ever let him go? बताइए बताइए, और लोग। क्या उसने कभी तुम्हें जाने दिया है? Have he ever let you go? हैज ही एवर लेट यू गो? और बताइए। हैज ही एवर, क्या बोला, सेंटेंस क्या बोला था मैंने? क्या उसने तुम्हें कभी जाने दिया है? हैज ही एवर ट्राई, हैज ही एवर लेट यू गो, सही है। हैज ही एवर लेट यू गो, क्या उसने कभी तुम्हें जाने दिया है? अच्छा, एक सेंटेंस ऑलरेडी के साथ भी करते हैं। मैंने यह पहले ही कर लिया है। I आई have हैव डन done this already. आई हैव डन ऑलरेडी। ऑलरेडी को आप और कहीं पे ले सकते हैं, और कुछ बता सकते हैं आप उसमें? I have हेल्पिंग already done this. आई हैव ऑलरेडी डन दिस। और बताइए आप लोग, और कोई? मैंने ये पहले ही कर लिया है। आई हैव ऑलरेडी डन इट, या आई हैव ऑलरेडी डन दिस, करेक्ट है।
ये जनरली क्या होता है, हैव के बाद ऑलरेडी हम लगा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आई हैव ऑलरेडी डन इट, या आई हैव ऑलरेडी डन दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, क्या वह तुम्हें गाने देता है? इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? Does he let you sing? Does he let him to see? डज ही लेट यू सिंग? सुरजीत जी बहुत मस्ती काट रहे हैं आप रीडिंग क्लब में, यहाँ की सर क्लास मैं छोड़। सर मैं देखा नहीं इधर कि आज मैं सोचा 8 बजे से है, इसीलिए सॉरी सर इसके लिए। नहीं बढ़िया है भाई, हमें छोड़ के। चलिए आगे तो बढ़ते हैं यहाँ पे, और बताइएगा। काफी चीजें मिस कर दी सुरजीत जी, आपने रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है अगर। अब बताइए, क्या वह पहले ही अपना काम कर चुका है? पहले ही के लिए लास्ट में अर्लियर लगा सकते हैं या बिफोर भी लगा सकते हैं। क्या वह पहले ही अपना काम कर चुका है? Has he done his work earlier? और कोई? क्या वह पहले ही अपना काम कर चुका है? क्या वह पहले ही अपना काम कर चुका है? Has he done his His work आएगा ना सर, his work earlier. own? हम्म Has he done his own work earlier? काय के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका। और ज्यादा क्या कर। Earlier, हाँ, अर्लियर बस आपका यहाँ पे यूज था। हैज ही डन हिज वर्क अर्लियर, क्या उसने पहले ही अपना काम कर लिया है या कर चुका है? हैज ही डन हिज वर्क अर्लियर, पहले ही कर चुका है मतलब। या आप इसमें एक वर्ड और लगा सकते हैं, इन एडवांस, है ना, इन एडवांस भी बोलते हैं। हैज ही डन हिज वर्क इन एडवांस, है ना। हैज ही डन हिज वर्क इन एडवांस। अर्लियर ये वाला केस यहाँ पर थोड़ा सा जो अर्लियर है वो एडवर्ब है, तो इसमें आप वो नहीं कर सकते कि हैज ही अर्लियर डन हिज वर्क, ये ऑड और साउंड करेगा। हाँ earlier recently भी जैसे बोलते हैं ना सर, हम हाँ, recently दैट इज हाँ, करेक्ट। रिसेंटली आप बोले हैज ही रिसेंटली डन हिज वर्क, वहां रिसेंटली आप लगा सकते हैं। ये आपका आगे भी लग सकता है, ठीक है। रिसेंटली बहुत बढ़िया आप यूज कर सकते हैं। हैज ही रिसेंटली डन हिज वर्क, वो भी बढ़िया है। रिसेंटली का मतलब लेकिन थोड़ा समझिएगा, थोड़ा अंतर होता है दोनों में। आपको पता है क्या अंतर होता है रिसेंटली और अर्लियर में? Earlier यानी कि हमने पहले ही किया हो, यानी 2-3 हाँ, दिन पहले। और और रिसेंटली हाल recently ही में। मतलब few hours यानी कि अभी। यस, अभी अभी हाल ही में किया है। हैज ही रिसेंटली डन हिज वर्क, अगर वो आपका सेंस वो है तो आप वहां रिसेंटली लगा सकते हैं। बट इस वाले सेंटेंस में बेटर आपका बिफोर या अर्लियर या इन एडवांस ज्यादा बेटर है, क्योंकि सेंस ही कुछ उस तरह का बन रहा है। बट हाँ, अगर आप रिसेंटली लगाते हैं तो वो आप हैव के बाद लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या उसने पहले अपना काम कर लिया है? हैज ही डन हिज वर्क अर्लियर या इन एडवांस, दैट इज मच बेटर। या आगे बताइएगा। सुरजीत जी आप बताइए, क्या तुम किताब पढ़ते रहे हो? क्या तुम किताब पढ़ते रहे हो? हम्म हैव यू हैव यू हैव यू बीन रीडिंग द बुक? यस, हैव यू बीन रीडिंग द बुक, करेक्ट है, बढ़िया है। हैव यू बीन रीडिंग द बुक। पल्लवी जी आप बताइए, क्या वह जाता रहा है? क्या वह जाता रहा Has है? हम्म has he been going? करेक्ट। दिव्या जी आप बताइए, मैं जाता तो हूँ। I used to go. आप में से कोई बताएगा मैं जाता तो हूँ? मैं जाता तो हूँ। I do go. आई हैव आई हैव। आई हैव बीन गोइंग। मैंने ये नहीं बोला मैं जाता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं जाता तो हूँ। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में कभी बीच में बताया जरूर था। बताया था सावन जी क्या? I do go बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। ये बताया था या नहीं बताया था मैंने? हाँ सर, एक बार मैंने पूछा था जैसे
मैं करता तो हूँ उसके लिए कुछ शायद मैं जाता तो हूँ, यहाँ पर आई डू गो आ जाएगा। मैं जाता तो हूँ, मैं करता तो हूँ, मैं खेलता तो हूँ, आई डू गो, दैट इज करेक्ट। दिव्या जी ने जो बताया आई यूज टू गो, उसका मतलब होता है मैं जाया करता था या मैं जाता था, है ना, वो जो फर्स्ट है। है। हाँ, पास्ट में हैबिचुअल एक्शन होता है उसको। तो मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। चलिए, आज चलिए कुछ नया भी सीख लेते हैं ऐसे ही। और कोई बताएगा? दिमाग लगाइएगा अपना। मैं जाने वाला हूँ। I मैं am जा about to go. यस, और बताइए। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं जाने वाला हूँ। आई वुड गो। आई एम अबाउट टू गो करेक्ट है, दिव्या जी ने बताया आई एम अबाउट टू गो। आई एम अबाउट टू गो। मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। ठीक है। और एक और बताइए, आप में से देखें कौन बताएगा। मुझे जाना है। मुझे जाना है। आई वांट I गो। have to go. आई वांट टू गो। आई वांट टू गो सेकंड से बेसिक। मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, ऐसा हो जाएगा। आई हैव टू गो इन द सेंस ले सकते हैं, बट उसका एक अलग यूज होता है। मुझे जाना हाँ, पड़ता है, आई हैव टू गो। वो एक और मजबूरी और सेंस हाँ, को दोनों यस को यस, सेटल किया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, बताइए। मुझे जाना है कहीं ना कहीं आई हैव टू गो सेंस में चल जाएगा, बट एक और यूसेज है इसका। लिख लीजिए, आई एम टू गो। आई एम टू गो, मुझे जाना है। आई एम टू गो। आई एम टू गो, है ना। ये बात अगर होती मुझे जाना पड़ता है तो क्या बनेगी इंग्लिश? I have to. यस, आई हैव टू गो, इसे भी लिख लेंगे। आई मस्ट गो बोल सकते हैं क्या सर? क्या? आई मस्ट गो। हाँ, जाना। मस्ट गो बोल सकते हैं। जब ये आपको मॉडल पढ़ाया जाएगा तो उसमें आता भी है कि हैव टू को रिप्लेस कर देता है मस्ट। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, बट एम्फसाइज करना चाहते हैं मजबूरी को तो हैव टू लगा सकते हैं, है ना। आप जैसे एक मस्ट गो होता है, इसका मुझे जाना ही चाहिए, ये सेंस ज्यादा रहता है तो मस्ट के साथ जाते हैं, है ना। मुझे जाना पड़ता है तो जनरली हम हैव टू के साथ जाते हैं, बट ये बात बिल्कुल सही है, जब मॉडल पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे आता है कि हैव टू को हम मस्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ केसेस होते हैं इसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने समझा, मुझे मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। और मुझे मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। मुझे जाना है, आई एम टू गो, आई होप आप लिख रहे होंगे। और मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। तो इस तरह से आपने किया। तो अब क्या इसी को हम दूसरे सब्जेक्ट में करना चाहें तो कर पाएंगे क्या? चलिए ट्राई करते हैं। सुरजीत जी कहाँ गए? हाँ आई गॉट बताइए। को कहाँ पर यूज कर सकते हैं सर? सेम दोबारा सेंस बोलिए, में यूज कर सकते। दोबारा बोलिए। आई गॉट गो। करेक्ट, बिल्कुल। आई हैव टू गो की जगह पर आई गोटा गो बोल सकते हैं। आई गोटा गो मजबूरी को दर्शाने के लिए। अच्छा, गोटा जो है वो आपका स्लैंग है, जैसे कल बता रहा था ना, गोटा। गॉट टू बस। हाँ, गॉट टू का बोल। बिल्कुल सही। तो आप याद रखेंगे कि ये स्लैंग में आता है, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल सेंटेंस भी आप कह सकते हैं इसको, यूज होता है मॉडर्न इंग्लिश में। आई गॉटा गो, आई गॉटा गो, आई गॉटा गो, राइट। गॉट टू का। ऐसे ही हैव टू का हैप्टा होता है, हैप्टा। आई हैव टू गो, जल्दी में बोलते हैं आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, ऐसे। हैव टू, हैप्टा, गॉट टू, गॉटा, है चलिए तो अब हम इसको थोड़ा सा करेंगे। सुरजीत जी, आर यू देयर? क्लब में तो नहीं चलेगा फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, वह जाता तो है कि इंग्लिश क्या बनेगी? जैसे मैं जाता तो हूँ, आई डू गो किया था आपने। अब वह जाता तो है, अब क्या करेंगे? He does go. और कोई? वह जाता तो है, वह जाता तो है। बताइए, वह जाता तो है।
बताइए। बस एक ही आंसर आया दिव्या जी का, बाकी। वही ऐसे डज गो, जैसे वहां हाँ, पर डू यूज हुआ है तो यहाँ डज यूज कर सकते हैं। बिल्कुल थर्ड सही। पर्सन। तो बोलिए ना, ही डज गो, करेक्ट। इट वह जाता तो है, ही डज गो हो जाएगा क्योंकि वहां पे डू था, यहाँ डज हो जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। पल्लवी जी, आपको समझ में आया क्या? यस सर। बताइए। राहुल जाता तो है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? राहुल डज गो। राहुल राहुल जाने डज वाला गो। है, पल्लवी जी बताएंगी। राहुल जाने वाला है, बताइए। राहुल डज अबाउट टू गो। राहुल डज नहीं आएगा। अबाउट टू वाले में अबाउट इज टू एम आर अबाउट टू आता है, बी अबाउट टू। गो। राहुल जाने वाला है तो इज एम आर में से पिक कीजिए। राहुल इज अबाउट टू गो। और बताइए, राहुल को जाना है। राहुल इज टू गो। वाओ। राहुल को जाना पड़ता है। राहुल हैज टू गो। करेक्ट। बढ़िया। अम आप बताइए सावन जी, उसे जाना ही चाहिए। ही हैव टू गो। ही ही हैव, हैज ही हैज ही टू हैव गो। टू गो। और कोई अल्टरनेटिव? दिव्या जी। मस्ट भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ही मस्ट गो। ये ज्यादा, हम अगर प्रायोरिटी की बात करें ना, अभी मैंने समझाने की कोशिश भी की थी। मैंने कहा था हैव टू और मस्ट रिप्लेस हो जाता है, बट यहाँ रिप्लेस पर कर। हाँ, प्रायोरिटी किसको देंगे? हैव टू को नहीं, मस्ट को देंगे। ऑब्लिगेशन, कोई चीज करनी ही चाहिए, है ना। एक, या ऑब्लिगेशन, कोई ड्यूटी को भी आप कह सकते हैं, एक ऑब्लिगेशन में आ जाता है कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। मोरल ड्यूटी में भी आप मस्ट का यूज कर लेते हैं। ठीक है। और एक ड्यूटी व्यूटी में, या फिर जब एडवाइस के रूप में कोई चीज आती है तो शुड का यूज करते हैं। ठीक। चलिए, और बताइए, कल इसकी मैंने प्रैक्टिस की थी, इसको बताया था, देखते हैं कितने लोगों को याद है। पल्लवी जी से शुरू करूंगा। बताइए। वह अच्छा डॉक्टर हो चुका है। वह एक अच्छा डॉक्टर हो चुका है। वह एक अच्छा डॉक्टर हो चुका है। बाकी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। वह अच्छा डॉक्टर हो चुका है। यहाँ हो चुका है कि इंग्लिश बीकम मत लगाइएगा। बीकम इज प्रोहिबिटेड हेयर। ठीक है। बीकम के अलावा कुछ यूज कीजिए। वह अच्छा डॉक्टर हो चुका है। ही इज बीइंग अ गुड डॉक्टर। वह अच्छा डॉक्टर हो रहा है, इसकी इंग्लिश होगी, हिंदी होगी। वह अच्छा डॉक्टर हो चुका है बोला है मैंने, या वह सॉरी अच्छा सर, डॉक्टर हो गया है। वो हैज आता है सर उसकी जगह। ही हैज He has turned into a good doctor ही or a हैज better टर्न्ड doctor. ही हैज टर्न्ड इनटू अ Better doctor. बेटर डॉक्टर। अच्छा, और कुछ नहीं मिला आपको? सर नहीं, मैं पहले he has become a good doctor यूज करती, पर आपने become वो हटा दिया हाँ, ना। बेकम को ही तो हटाया है। हो, होना की इंग्लिश नहीं हम बताई थी कल। होना की इंग्लिश क्या होती है? होना की इंग्लिश भूल गए बीन हम लोग। बीन सर। बीन, ही बीन है। बीन सर। हाँ, ही हैज बीन, बी का थर्ड फॉर्म। ही हैज बीन अ गुड डॉक्टर। यस, ही हैज बीन अ गुड डॉक्टर। बाकी आप जो लगा रहे हैं ठीक है, बिकम भी लग जाएगा, टर्न टू हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। मैं कल जो बताया था उसको एम्फसाइज करना चाह रहा था पर्टिकुलरली। ही हैज बीन अ गुड डॉक्टर। आई हैव बीन देयर, मैं वहां जा चुका हूँ, या मैं वहां पर हो चुका हूँ। इसका सेंस होता है मैं वहां जा चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ। आई हैव बीन देयर। हैव यू एवर बीन इन कानपुर? क्या आप कभी कानपुर गए हो? यस, आई हैव बीन इन कानपुर मैनी टाइम्स। ठीक है। आई हैव बीन हेयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मैं यहाँ पर काफी लंबे समय से रहा हूँ या हुआ हूँ, है ना। अच्छा, तो वह एक अच्छा डॉक्टर हो चुका है, ही हैज बीन अ गुड डॉक्टर। सुरजीत जी, आप हैं यहाँ पे? कहाँ चले गए सुरजीत जी? चलिए, आगे बताइए। इसी के पेपर बेस्ड पूछता हूँ। क्या वह कभी अ, कानपुर में गया है?
मतलब आप ऐसे वैन गॉन लगा सकते हैं, पर गॉन को अवॉइड करना चाहें तो क्या हुआ, कभी कानपुर में हुआ है, कानपुर मतलब। Has he ever been to Kanpur? यस। यस बताइए आप, बताइए सावन जी। हैज ही एवर बीन, या बीन की जगह हम गॉन यूज कर सकते हैं सर। मैंने उसको हैज अवॉइड बीन करने, एवर गॉन टू कम। अवॉइड करने को बोला था। ठीक सर, हैज मैं चाह क्या रहा हूँ, हैज मैं चाह रहा हूँ बीन का यूज सीखें आप यहाँ पर, इसलिए हैज ही ठीक एवर बीन, एवर बीन। हैज ही एवर बीन टू कानपुर, हाँ कर सकते हैं। या फिर इनका भी यूज कर सकते थे यहाँ पर, है ना। हैज ही एवर बीन टू कानपुर या फिर हैज ही एवर बीन इन कानपुर। अच्छा याद रखेंगे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि यूज तो कर सकते हैं। ठीक है। तो सर बीन की हाँ जगह पे विजिट विजिट के थर्ड फॉर्म को यूज कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये सेंस वहां पे बैठ रहा है ना यार, गॉन भी आ जाएगा, विजिटेड भी आ जाएगा। ठीक है। अब मैं सेंस थोड़ा के हिसाब से। हाँ मैं डिफरेंस बता रहा था, हैज ही एवर बीन इन कानपुर, हैज ही एवर बीन टू कानपुर, क्या डिफरेंस है दोनों में। अम, हालांकि रफली बोला जाए तो दोनों एक्सेप्ट किया जा सकता है, पर इनका पर्टिकुलरली यूज होता है कि वहां पर आप रह के कुछ दिन रहे हैं, स्पेंड किया है टाइम, तो इनका यूज होता है। बीन टू मतलब आप गए हैं बस वहां पर, जैसे गॉन टू कर देते हैं ना, वैसे उसी तरह से। तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, पर वो एक बड़ा इम्पैक्ट खड़ा करता है। ट्रांसलेशन पे नहीं दिखाई देगा, बट सेंस के हिसाब से देखेंगे तो बड़ा इम्पैक्ट खड़ा करेगा। हैव यू एवर बीन इन कानपुर, क्या आप कानपुर में रहे हो, इसका मतलब ये है। और हैव यू एवर बीन टू कानपुर, क्या आप कानपुर कभी गए हो, ऐसा है ना। तो ये हुआ मेरा। अब आप बताएंगे मुझे। हम्म, वह उदास हो रही है, होना की इंग्लिश, होना की इंग्लिश यहाँ पे भी लगेगी। वह उदास हो रही है, बी होती है होना की इंग्लिश, और एक She has कंटिन्यूस है। been she has been depressed or she has been sad. हो रही है, वह उदास हो She is रही। she is being sad. सी इज बीइंग सैड, ओके। और बताइए आप में से और कोई। सुरजीत जी बताइए, वह उदास हो रही है। सी इज अपसेटिंग बोल सकते हैं। अपसेटिंग, अपसेट वर्ब कब से हो गया, वर्ब नहीं होता है अपसेट। सी इज बताइए। फीलिंग अपसेट, ऐसे बोल सकते हैं क्या? सी इज हाँ फीलिंग ये, अपसेट। हाँ सेंस के आधार पे सही हो जाएगा, सी इज फीलिंग अपसेट। पर आप थोड़ा सा, मैं अभी बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सेंस के हिसाब से हम कह सकते हैं फीलिंग अपसेट। ठीक है। कोई बुला रहा है मुझे। एक्चुअली मैं क्लास ले रहा हूँ। ऑल राइट। ठीक है, तो आपने कहा क्या, वह क्या था, सी इज बीइंग सैड, ये आपका का ज्यादा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि वह उदास हो रही है, होना की इंग्लिश बी लगती है, और बीइंग हो गया। और शी इज फीलिंग सैड, सेंस के हिसाब से मैंने कहा था सही है, क्योंकि उसका मतलब ये होगा वो उदास महसूस कर रही है। ठीक है। उदास हो रही है, उदास महसूस कर रही है, थोड़ा सा अगर आप डिफरेंस करना चाहें तो आप इसमें देख सकते हैं कि फीलिंग और बीइंग में थोड़ा अंतर है। हालांकि इसलिए मैंने कहा था कि सेंस के हिसाब से सही है, क्योंकि दोनों में आप उदासी हो रहे हो, तो महसूस ही करते हो उदासी को, तो इसलिए मैंने कहा कि सेंस के हिसाब से सही हो जाएगा। पर अगर हम ज्यादा सही के साथ जाएं तो बीइंग लगाएंगे यहाँ पर। ऐसे ही बताइए, क्योंकि अभी और वाले सेंटेंस होंगे उसमें फीलिंग लगा नहीं सकते। जैसे चाय ठंडी हो रही है, द टी, द टी इज, क्या हो जाएगा। कहाँ गए सब लोग भाई, सावन जी, दिव्या जी, सुजीत जी, कहाँ हैं आप लोग। पल्लवी जी आप बताइए। चाय ठंडी हो रही है, The the tea is द टी इज, being ठंडी की कोल्ड, cold. द टी इज बीइंग कोल्ड। बहुत बढ़िया। अब आपको बीइंग तो बता ही दिया है मैंने, होना के लिए। एक वर्ड अल्टरनेटिव और है जो यहाँ पे यूज हो सकता है, कोई गैस करेगा क्या है। Getting. यस करेक्ट, गेटिंग।
जब कंडीशन चेंज होती है तो हम गेट का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी बोल सकते हैं द टी इज गेटिंग कोल्ड, शी इज गेटिंग अपसेट, शी इज गेटिंग सैड। ठीक है, कंडीशन बदल रही है। और जैसे अब हम कहें चाय ठंडी होती है, तो यहाँ पे बीज तो कर नहीं पाएंगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, गेट ही लगाना पड़ेगा। चाय ठंडी होती है, इसलिए बताया आपको अल्टरनेटिव। बताइए क्या बनेगी इंग्लिश, चाय ठंडी होती है, द टी, बताइए। चाय ठंडी होती है, बताइए दिव्या जी। Tea is being cold. होती है, Tea is getting cold. होती है, टी गेट कोल्ड ऑल्सो। फिर से बोलिए सावधानी, क्या होगा। इस सर अभी प्रेजेंट टेंस में ले सकते जैसे होता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो टी He टी गेट gets कोल्ड बोल cold. सकते हैं। द टी गेट्स कोल्ड, Gets cold. यस, क्योंकि बी का यहाँ पे बन ही नहीं सकता। बी में तो आप शायद इज एम आर लगाएंगे तो चाय ठंडी है इंग्लिश बन जाएगी, द टी इज कोल्ड। पर यहाँ पर कंडीशन बदलते हुए दिखानी है, द टी गेट्स कोल्ड, कोई चीज ठंडी हो जाती है ना। तुम उदास हो जाते हो, क्या होगा इसकी इंग्लिश, तुम उदास हो जाते हो। You get sad. यू गेट सैड या यू गेट अपसेट, है ना। यू गेट सैड, यू गेट अपसेट। वह खुश हो जाती है, She gets. टी गेट्स She हाँ। शी गेट्स, टी गेट्स शी हैप्पी, गेट्स गेट्स हैप्पी, हैप्पी। करेक्ट है, हाँ। शी गेट्स हैप्पी, वह खुश खुश हो जाती है, शी गेट्स हैप्पी, है ना। जब मैं जाता हूँ वह खुश हो जाती है, क्या बनेगी इसकी इंग्लिश। जब मैं जाता हूँ वह खुश हो जाती है, when I go, she gets happy. Yeah, when I करेक्ट। visit, she gets happy. हम्म, वैसे आपके जो टंग पर बिकम आ रहा था वो भी करेक्ट ही था, व्हेन आई गो सी बिकम्स हैप्पी, ये भी होने की अवस्था है। हाँ, अगर आप चाहें तो बीकम का यूज कर सकते हैं, जैसे बी का यूज तो नहीं कर पाएंगे, पर बीकम एक अल्टरनेटिव हो सकता है इस वाले केस में, राइट। तो सी गेट्स हैप्पी, सी बिकम्स हैप्पी, है ना, खुश हो जाना, बढ़िया। अम और बताइएगा, पल्लवी जी। वह पिछले साल से यहाँ रह रहा है, वह पिछले साल से यहाँ रह रहा है। He has been he has been ही हैज बीन, here रहना की लिव आईएनजी लग जाएगी, लिविंग। ही हैज बीन he लिविंग has been living Here. हेयर, living here पिछले साल से, पिछले साल से since ला year लास्ट ईयर, since last year. हाँ, सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, ये आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो वाला वीडियो देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले में कराया था टाइम कौन सा कहाँ पे लगता है। ठीक है, सुरजीत जी आप हैं यहाँ पर या नहीं, या अभी मेरा रौद्र रूप देख कर ही जाएंगे आप यहाँ से। यस सर, मैं थोड़ा बिजी हो गया था सर, इधर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, मैं अच्छा, ड्यूटी पे हूँ अभी। हाँ सर बताइए। अच्छा, बताइए। अम, पानी ठंडा हो जाता है, क्या होगा। पानी ठंडा हो जाता है, हम्म, द वाटर गोइंग टू वार्म। रहिए बिजी, पानी ठंडा हो जाता है, बताइए पल्लवी जी। The water is getting
द वाटर इज गेटिंग कोल्ड कैसे हो जाएगा, रहा कहाँ बोला है, हो जाता है। द वाटर गेट्स कोल्ड। यस, द वाटर गेट्स कोल्ड। बढ़िया। द वाटर गेट्स कोल्ड। अब बताइए सुरजीत जी, आप गायब हो जाते हैं। गायब होना, आप डिसअपियर्ड लगा सकते हैं गायब के लिए, है ना। डिसअपियर्ड, आप गायब अच्छा। हो जाते हैं। आई गेट डिसअपियर। अपीयर्ड, है ना। थर्ड फॉर्म लगता है, गेट के बाद ओके कंडीशन हाँ। बनानी होती है। चलिए, आपने अपने ऊपर ही बोल लिया, आई गेट डिसअपियर्ड। हमें लगा ट्रांसलेशन करेंगे तब बोलेंगे यू गेट डिसअपियर्ड। चलिए, एग्री तो किया। चलिए बढ़िया। यू गेट डिसअपियर्ड या वेनिस्ड भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है। चलिए, इनविजिबल भी लगा सकते हैं, अगर वो वाला लगाना है। कौन सा, इनविजिबल मैन, एक मूवी है, क्या नाम है, मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया, यस। वो गायब होना अलग हो जाएगा ना। यू गेट डिसअपियर्ड। एक मिनट रुकिएगा, डिसअपियर, एपियर और डिसअपियर एक बार चेक कीजिएगा। डिसअपियर आपका वर्ब होता है और नाउन भी होता है क्या? अगर डिसअपियर नाउन होता है तो आप इसको लगा सकते हैं। डिसअपियर, गायब होना, हाँ नाउन के रूप में भी आता है आई गेस। अगर आप नाउन के रूप में आता है तो इसको आप लगा सकते हैं। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। प्राइमरी नाउन फॉर्म वर्ब, डिसअपियर इज डिसअपियर, हाँ नहीं आता है। ठीक है, डिसअपियरेंस होता है। ठीक है, तो सही बोल रहा था मैं, डिसअपियर्ड होगा। ओके, यू गेट डिसअपियर्ड। अच्छा, उसका दिल टूट जाता है जब तुम झूठ बोलते हो। पूरा बनाइए, उसका दिल टूट जाता है जब तुम झूठ बोलते हो। हिज हार्ट। हम्म, बताइए। His heart get broken when you tell a lie. हिज हार्ट When गेट्स, you tell a lie, हाँ, his heart Get gets broken. broken. Get broken. व्हेन यू टेल अ लाई हिज हार्ट गेट्स ब्रोकन। अच्छा, हर्ट जो होता है HURT को बोलते हैं हर्ट। और जो ये HEART होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन, Hurt. हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन सुनाता हूँ आपको। HEART, प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश एंड अमेरिकन। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश सुनेंगे, इसमें र साउंड गायब होता है। हार्ट, हार्ट। अमेरिकन सुनेंगे, हार्ट, हार्ट। ठीक है। इंडियन सुनेंगे, हार्ट, हार्ट। तो ये हर्ट, हर्ट नहीं होता है, हार्ट। अमेरिकन में, ब्रिटिश में हार्ट। थोड़ा सा उससे Hurt. र जो है उसमें थोड़ा छिपा हुआ है, हार्ट। या तो आप अमेरिकन बोलिए, क्योंकि फिर सिमिलर हो जाता है ये HOT के फिर, जैसे उसको भी बोलते हैं हॉट, हार्ट। तो वो नहीं है यहाँ पे, हार्ट। ठीक है, हार्ट। तो दैट इज बेटर टू गो विद अमेरिकन इंग्लिश हियर। तो हार्ट होता है, ये हर्ट नहीं होता है। ओके, चलिए, तो फिर और बताइए आप। हम्म, वह क्रोधित हो जाता है जब मैं उससे बात करता हूँ। वह गुस्सा हो जाता है जब मैं उससे बात करता हूँ, या वह नाराज हो जाता है जब मैं उससे बात करता हूँ। He When I gets communicate with एक एक करके बताइए सावन जी। when I communicate with him, हम्म, he gets angry. यस, बताइए दिव्या जी। he gets angry when I talk to him सही है, or communicate with him. सही है, कम्युनिकेट या टॉक कुछ भी लगा सकते हैं। व्हेन आई टॉक टू हिम ही गेट्स एंग्री। बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे बताइए, टॉक टू करेक्ट है या फिर टॉक विद? ये अच्छा सेंटेंस है, इसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टॉक टू या टॉक विद। Talk with Talk to. यहाँ टॉक टू ज्यादा करेक्ट है, क्यों पूछिए? क्योंकि आप बात करते हैं, वो नाराजी हो जाता है, बात करता कहाँ है वो आपसे, वो तो one way गुस्से ही हो on the जाता है। हाँ, वन वे हो गया ना। आप बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे बोलते हैं वो नाराज हो जाते हैं, ये चीज। ठीक है, चलिए बढ़िया। चलिए, तो फिर आज के लिए इतनी ही रखते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, आज थोड़ा सा अलग किया हमने सेशन में कुछ, तो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इज टू, हैज टू, हैव टू, है ना।
इज टू एम टू आर टू ये समझा है, हैज टू हैव टू समझा है, इज अबाउट टू एम अबाउट टू आर अबाउट टू समझा है। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी बीन का यूज भी समझा है, गेट्स का यूज समझा है। गेट्स मतलब कोई कंडीशन होती है उसके साथ बदलना, तो गेट गेट सब कुछ कोई बदलता है, गेट्स हैप्पी या गेटिंग हैप्पी, गेटिंग कोल्ड, है ना। बी का भी यूज समझ लिया है, बीइंग सैड, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चाहे तो सेशन को एक बार और देख लीजिएगा 2x पे, या फिर इधर उधर लगा के कि जहाँ पे आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। एंड आप चाहें तो अपना होमवर्क इसमें क्या करेंगे कि आप रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं, या फिर आप लिख करके कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे इस तरह के यूनिक सेंटेंसेस। ओके। ओके, तो ओके दैट इज योर सर। होमवर्क। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नो? चलिए, ओके फिर। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टुडेज सेशन। डू योर वर्क एंड शेयर योर होमवर्क इन द ग्रुप। ओके सर, थैंक यू। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Good night.